Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Good afternoon to all of you. रश्मि मैम ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं ना, कनेक्ट हो चुकी हैं. गुड आफ्टरनून मैम. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon मैम. Good afternoon to all of you. I, Anuradha, take the privilege to welcoming everyone in the e-lecture series program organized by Vasant Kanya Mahavidyalaya. It's a pleasure and privilege for me to welcome Dr. Rashmi Jain ma'am, Associate Professor, Department of Sociology, Rajasthan University. Ma'am has completed 3 research projects. She has participated in more than 15 national seminars, symposiums, and workshops. She has also written more than 10 research papers on different issues related to tribal entrepreneurs, the elderly, and many more. I am seriously grateful to your presence, ma'am. Now, ma'am will deliver a lecture on the topic history of sociological thought. And this is a topic which we should all be deeply interested, because it is very important to understand the sociological background. So, without taking much time, ma'am, I welcome you on behalf of Vasant Kanya Mahavidyalaya. I also welcome other faculty members and participants. I know that our students will surely benefited from you, ma'am. So I would like to invite you, ma'am, that please deliver your lecture and enlighten our students. Dr. Rashmi Jain, ma'am, over to you, ma'am. Thank you, Dr. Anuradha, for this Thank you, warm ma'am. welcome. And can I share the screen? Okay. So, Yes, ma'am. yeah. This is just a second. I think there are too many windows open. That is why it is. Just a second. Again, it's just gone. Why is it taking only this screen? It is mirroring. Ooh. Yeah, sorry. Is this visible? Yes, Is the ma'am. screen visible? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. thank you so Visible. much. Yeah, yeah, there was some issue. Anyway, today I have been assigned the topic of history of sociological thought to be talking to the students, and it's my pleasure to be speaking to young budding sociologists about the emergence of sociological thought. And first, we will start with, sociology, as you all know, is a very new discipline. It is not as old as political science or philosophy. And it's a very, very new, recent phenomena that it has come up. 1838, as you all know, Auguste Comte, our founder of sociology, in 1838, he coined the term sociology. So it's a very new phenomenon.
And if you look at 1838, and that is an era, English, Hindi, Yes, ma'am, bilingual. If you will bilingual. talk, yes, Okay, ma'am. okay. So we'll do bilingual. So 1838, if you look at 1838, now 1838 is 19th century. और 19th सेंचुरी के अगर हम वातावरण को देखें या उस समय जो हो रहा था उसको हम देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे कारक मिलेंगे जो कि समाजशास्त्र के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने कुछ शुरुआत में मैंने आपको यही इन सब पे चर्चा करनी चाहिए that if you look at the 19th century, it was a period of enlightenment. आपने पढ़ा होगा enlightenment, intellectualism, the period of intellectual development and change in thought. जो मिडिवल एजेस की हमारी थॉट प्रोसेस थी, जो एंशिएंट टाइम्स की हमारी थॉट प्रोसेस थी, वो चेंज हो रही थी. नंबर ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू सोशल लाइफ वर ओवरथ्रोन एंड रिप्लेस्ड. वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाज कि हम समाज के सामने इतने नए चैलेंजेस आ रहे थे कि जो कुछ उनको पहले से पता था या जो ट्रेडिशन था या जो ट्रेडिशनल थॉट पैटर्न था, दोस ट्रेडिशनल थॉट पैटर्न्स वर बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म एंड दे वर बीइंग थ्रोन and being replaced. So लोग बहुत परप्लेक्स हो रहे थे कि क्या बात है, हम हमेशा से जॉइंट फैमिली में रहते रहे हैं, हमारा जो है एक एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन होता था, अब एक नया ऑक्यूपेशन का स्रोत आपके पास आ गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कि इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लोग अपने घर को छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने लगे. तो इतनी सारी, और जब लोग शहर गए तो इट वाज नॉट ओनली दैट अ पर्सन हैज गॉन टू द सिटी टू वर्क, बट इट वाज आल्सो दैट हिज फैमिली unit broke. From joint family it started becoming withering away when the sons or the able-bodied men started moving. When they moved to urban areas, तो वहाँ पर जाके उनको घर के लिए घर चाहिए था, फिर उनको रहने लोग चाहिए थे, तो उन्होंने फिर वहाँ पर जाकर पुनः जो है अपना उनको अपनी फैमिलीज को, अपनी वाइफ्स को, इन सबको बुला लिया. So in this case you see that what is happening, that people are, can you just give me a second, I think a battery khatam hone wali hai, I'll just make a call and ask him to get the battery. Yeah, so these were the changes that were happening. So jo hum jin cheezon ko we were taking it them for granted, that there is no problem, that we are believing whatever we are believing is what is happening in life, was being questioned. When this was being questioned, तो ये प्रॉब्लम आई कि अब जो कुछ भी हम सोच रहे थे, योगिता इसका चार्जर भिजवाओ भाई, यहाँ चार्जर ही नहीं लगाया इन्होंने. अच्छा सॉरी, चार्जर तो है, चलो देखती हूँ, है. सॉरी. Yeah, so then you look at the intellectual development that was happening. Number of prominent thinkers like Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Hobbes. 17th century philosophy and science. If you look at 18th, 19th century, that was the century. 15th century onwards, 16th century onwards, we see a predominance of science. Scientific inventions हो रहे थे. तो आप सोचो एक ऐसा समाज, एक ऐसी society where every day something new was happening. पहले कहा कि Earth is round. जब अर्थ इज राउंड तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि कैसे राउंड हो सकती है, हम गिर जाएंगे, हम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो रोज नए नए आइडियाज हमारे पास आ रहे थे जो कि चैलेंज कर रहे थे आप जो कुछ भी सोचते हैं समझते हैं. तो उनसे प्रॉब्लम हुई. फिलोसफर्स जो थे, डेस्कार्टिस, हॉब्स, लॉक, वो अपना कह रहे थे कि जो सोसाइटी है इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. Then they were combining empirical research with reason, not with tradition but with reason. हमारा मॉडल क्या बनने लगा था, साइंस वाज आवर मॉडल, दैट साइंस होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द large number of inventions and discoveries that were taking place. The model was science, an application of scientific method to social issues. And when you apply scientific method to a social issue, then tradition or your beliefs or your values, your mores do not stand a chance. So they wanted the science said that we want their ideas to be derived from real world, wanted them to be useful for the world. Emphasis on human reason, powers of human reason. अभी तक कहा जाता था, इसके पहले कहा जाता था कि human beings में रीजनिंग पावर जो है वो कम है, ये हम नेचर से गवर्न होना चाहिए.
belief in the idea of progress, that we started believing in the idea of progress, belief that people could comprehend and control the universe by means of reason and empirical research. The premise that if the physical world is dominated by natural laws, then why should not the social world be? ये एक बहुत बड़ी premise presumption वहां पर तब आ रहा था कि जब नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड जो भी हमारा है वो अगर नेचुरल लॉ से चलता है तो व्हाई नॉट द सोशल वर्ल्ड भी चल सकता है नेचुरल लॉ से. सो एम्फसाइजिंग ऑन रीजन, एनलाइटनमेंट, philosophers inclined to reject beliefs in traditional authority. और ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आप सोचिए कि 1838 का जो समय था उसमें किसकी अथॉरिटी सुप्रीम हुआ करती थी? चर्च ना. चर्च की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन किया गया. When Galileo said that earth is round, चर्च ने कहा no, earth is flat, and there गैलीलियो को इम्प्रिजन किया गया क्योंकि उसने चर्च की बात को डिफाई किया था. एंड सो पीपल वर परप्लेक्स्ड कि चर्च, जिसको कि वो कहते थे कि भाई चर्च जो है वो ओमनी पावरफुल है क्योंकि दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, एंड हेंस दे आर द वंस हु नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. If church is saying it cannot be challenged, but science ने चर्च की जो फिजियोलॉजी थी उसको चैलेंज किया. अब जब उसको चैलेंज किया तो लोगों के मन में डाउट वहां पर आने लगा कि what is the reason. This was one part. Enlightenment एक पार्ट था. उसी समय फ्रेंच रेवोल्यूशन में हो 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां पर हुआ था. ना फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया? रेवोल्यूशन तो बहुत हुए, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए बिकॉज इट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग और यहाँ से डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो आए. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों वैल्यूज हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन उनको माना जाता है. सो इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बिकॉज ओवरथ्रो थ्रू द ओल्ड ऑर्डर, एंड ओल्ड ऑर्डर वाज मोनार्कियल ऑर्डर. लुई बोनापार्ट 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने उनको उठाकर फ्यूडल अथॉरिटी और जो रॉयल्टी थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसको हटाकर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने का प्रयास वहां पर किया. सो दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज. नाउ आप कहेंगे कि ये तो एक घटना थी जो कि फ्रांस में हुई, फ्रेंच मोनार्की इन्वॉल्व थी, फ्रेंच पीपल इन्वॉल्व थे, इससे समाजशास्त्र का विकास कैसे होता है? पर आप देखिए कि वो समय ऐसा था जो समय में ये सारे बीज एक साथ बोए जा रहे थे. एक तरफ साइंस उठकर आ रहा था, रीजन की बात कर रहा था, प्रोग्रेस की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज दिखा रहा है. वो कह रहा है कि जो आप एज ओल्ड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सोचते हो कि राजा जो है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगडम जो थी उसको क्वेश्चन कर रहा था और उसको कह रहा था कि नो, इट इज नॉट राइट. पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्लाइमेट वाज डोमिनेटेड बाय द चर्च एंड मोनार्की, और उसको ओवरथ्रो कर दिया उन्होंने फ्रेंच ने. Period of radical social and political upheavals in France. Monarchy collapse कर गई, French society transform हो रही थी, feudal aristocratic privileges were removed from the society. उनको इतने privileges, common man के पास privileges नहीं थे, लेकिन जो feudals थे उनके पास umpteen number of privileges थे. So principles of equality, liberty and fraternity कम है. अब liberty का मतलब क्या है या equality या fraternity का मतलब क्या है, ये सब एक democratic society में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. तो ये वाली जो है प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैं अभी बहुत मोटे मोटे तौर पे आपको बता रही हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन में और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक टू टेल यू दैट व्हाट वाज द बैकग्राउंड. नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितनी चीजें के साथ में कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं. End of feudalism and aristocracy is one thing which we talked about. Peasants started becoming powerful. जब feudalism खत्म हुआ तो peasantry जो थी वो powerful होने लगी, यानी कि जो agricultural जो farm labor था वो powerful होने लगा. Class system change होने लगा. Liberty, equality, fraternity की हमने बात करी है. Democracy started emerging. Nationalism राइज होने लगा और साइंटिफिक इंक्वायरी भी चलने लगी. अब आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज, एक रेवोल्यूशन से इतनी सारी चीजें हुई. इसके साथ साथ यहाँ पर मर्केंटाइल वर्ल्ड में भी चेंज हो रहा था. मनी जो है, अभी तक जो मनी था, कॉइन्स वगैरह जो थे वो चेंज होके पेपर मनी वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मर्केंटाइल सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम हैड कम इन. जब मर्केंटाइल सिस्टम जब आपका आया तो मर्केंटाइल ने आपको पेपर मनी आपका आया तो पेपर मनी, फिर अब तो हम डिजिटल मनी में आ गए हैं. सो इट रेज्ड सर्टेन क्वेश्चंस कि जो लोग
इतने सालों से जिनको कि इम्पोर्टेंट मानते थे अपने लिए कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या यही मेरी लाइफ है, वो लाइफ बिल्कुल क्वेश्चन होने लगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे पेजेंट्स और फ्यूडलिज्म के बीच का जो रिलेशनशिप भी देखेंगे, जैसे इंडिया में हम देखते हैं तो जजमानी व्यवस्था वहां पर पाई जाती है। तो ये इस प्रकार की जो रिलेशनशिप थी, को एग्जिस्टेंस की रिलेशनशिप वो थी, और पेजेंट्स वुड वुड मतलब वहां पर उनको लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि वो फ्यूडलिज्म को क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब ऐसे सोशल वैल्यूज आ गए, फिलोसफर्स आ गए हु स्टार्टेड क्वेश्चनिंग the age old wisdom, and they started coming up with new ideas which people found to be right, or people found them to be more useful to them, and they started accepting those ideas. ये एक चित्र है, एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन सी द चेंजेस। नाउ वी कम फ्रॉम, हम वी लुक एट dawn of modernity and its fallouts. अगर हम 18th-19th century को देखते हैं तो 18th-19th century is the century of modernity because of the change in science and technology, inventions and discovery, democratic values. तो इससे social changes भी हुए, economic changes भी हुए और political changes भी हुए। Political changes में हमने देखा कि क्या political changes थे कि feudal system जो था या monarchical form of government थी वो question की गई, and we see that a democratic form of government came into existence which changed the whole way of thinking. इकोनॉमिक चेंजेस जो थे, इकोनॉमिक चेंजेस में हम देखते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको कहा बैंकिंग है, पेपर मनी है, ये वाले सारे चेंजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए। सोशल चेंजेस में हम देख ही रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ या एक अर्बनाइजेशन हुआ या आपका ये जो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब द वे यू वांट वर्क। अभी तक हम अपने घर में अपने एग्रीकल्चर में काम करते थे, अपने फार्म लैंड पे काम करते थे, और अब हम कहीं जाकर काम कर रहे हैं तो यू फाइंड अ सिस्टम ऑफ वेजेस व्हिच स्टार्टेड कमिंग इन, कि अब आपको अपनी लेबर का पैसा मिलता था, so you would draw wages. So there were many changes which were happening. So with these changes came social challenges. आपने अर्बनाइजेशन को देखा, अर्बन एरिया डेवलप हुआ, वो तो एक अच्छी बात थी, लेकिन अर्बन एरिया डेवलप होने के साथ साथ क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो वहां पर क्राउडिंग हुई, वहां पे स्लम्स बने, वहां पे दूसरी चैलेंजेस आए, और जो रूरल एरियाज थे जहां पर वो ओरिजिनली थे वहां पर भी scarcity of human resource डेवलप होने लगा। एबल बॉडीड मूव टू द सिटीज, एंड दोज हु वर डिपेंडेंट यानी कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जो है वो पीछे रह गए। तो वहां पर भी आपको काम करने के लिए लोगों की, अगर फार्म पे भी काम करना है तो आपको लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि पहले जो वर्क उनकी फैमिली मेंबर्स कर लिया करते थे, नाउ बिकॉज ऑफ देयर मूविंग अवे टू द अर्बन एरियाज देयर वाज अ क्राइसिस इवन इन एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर आउटपुट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। सिमिलरली इकोनॉमिक चेंजेस के साथ साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस आए। जब हम देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम आया तो पीपल, जो हम गोल्ड, सिल्वर, जैसे प्रेशियस मेटल्स वगैरह होल्ड करते थे, वो सारे चैलेंजेस वहां पर आने लगे। पॉलिटिकल चैलेंजेस आए नेचुरली, जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज आए, तो ये कहने में तो बहुत आसान लगता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ गए, लेकिन इट वाज नॉट एज सिंपल एज दिस। द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, it took a lot more than for coming, because you had to defy the old system, you had to question the old system, और जो हमारा फ्यूडल माइंडसेट था वो माइंडसेट हमारा चेंज नहीं हो पा रहा था। तो हम हर एक जगह पर हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीप इन नहीं कर पाए। पॉलिटिकल चैलेंज में तो हमने ले लिया उसको, पॉलिटिकल चेंज तो हो गया डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अडॉप्ट करने का, लेकिन हम सोसाइटी में अभी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अडॉप्ट नहीं कर पाए। और यहाँ जब ये चैलेंजेस थे तो इसके क्वेश्चंस भी उठे कि हु इज गोइंग टू आंसर, प्रोवाइड एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस। देयर वाज नो सोशल साइंस व्हिच कुड deal with all these challenges. Political science would only look at political challenges, economics would only look at economic challenges, and there were nobody to look at the social challenges, क्योंकि पहले इन social challenges को important समझा ही नहीं गया था। और क्योंकि समाज एक ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था, एक स्टैटिक सोसाइटी थी, तो इतने चैलेंजेस आ नहीं रहे थे। So there came a need, there developed a need that we need a new science which can provide an answer to all these questions. That is why, then we had the intellectual context and the scientific context, and this thing developed. Now empiricism, that the idea of empiricism was developed in 17th to 18th century.
by Locke, Berkeley, David Hume, and it says that all knowledge is based on experience derived from senses, यानी कि sensory organs से, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जो भी हमको एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं, यानी कि जो 5 सेंसरीज हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं. सो दिस empiricism is fundamental to the scientific method. Epistemological tenet था कि sensory experience creates knowledge, और success in natural sciences, discover laws underlying nature, inventions and discoveries, ये वहां पर हो रही थी, और इसकी वजह से हमको then idealism and rationalism, अगर विज्ञान की बात करें तो reality that we know of is fundamentally mentally constructed or otherwise immaterial, यानी कि जो जिस भी यथार्थ को हम जानते हैं वो मानसिक रूप से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. It manifested skepticism, संदेहवाद को उसने कहा कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए, आप किसी भी चीज को यूं ही नहीं मान लेंगे. विज्ञान कहता है डाउट लाइए, skeptical होइए. One of the characteristics of scientific method is skepticism. How human ideas, especially beliefs, values shape the society. ये क्वेश्चन आने लगा कि क्या ह्यूमन आइडिया, क्या ये जो सोशल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं वो सोशल वर्ल्ड हमें गिवन है, या we can be contributing to the change. Ontologically, all entities are composed of mind and spirit, and rationalism said that it is a principle of basing opinions and actions on reason and knowledge rather than religious belief and emotional response. अभी तक जो सोसाइटी थी वो रिलीजियस बिलीफ पे चल रही थी या इमोशनल रिस्पॉन्स पे चल रही थी. माँ ने कह दिया, पिता ने कह दिया, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, उस पे आधार पर सारी चीजें होती थी कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा के विरोध में नहीं जा सकते चाहे वो गलत ही कह रहे हैं. तो रैशनलिज्म क्वेश्चन दिस कि आप उसको रीजन पे करिए और नॉलेज पे करिए रादर देन ऑन रिलीजियस बिलीफ्स. So this also raised this question. Then we come to another main force, which was the Industrial Revolution. Europe started changing from agriculture to factory production क्योंकि industrialization हो रहा था. तो वहां पर industrialization, अब आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्री लगने से, या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर रेलवे इंजन बना तो रेल ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम बन गया, और एक ऐसा मीडियम बन गया, इससे पहले लोग या तो पैदल चलते थे या बैलगाड़ियों में जाते थे या बुलक कार्ट्स में या हॉर्स कार्ट्स में जाते थे, उनमें ही सवारी होती थी. So there was a definite amount of distance that you could travel, क्योंकि वो humanly travelable distance था. अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप जितना चल सकते हैं उतना ही चल सकते हैं रात होने के पहले, और अगर आप गाड़ी में भी जा रहे हैं तो भी वो भी ह्यूमन, वो भी बीस्ट है, एनिमल की भी अपनी लिमिटेशंस थी. लेकिन अब जब ट्रेन इंजन आया और वो इंजन जो था उसकी कैपेसिटी वाज मच मोर देन ह्यूमन कैपेसिटी, और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस जा सकता था. सो वी स्टार्टेड विद गुड्स ट्रेन आई. अब गुड्स ट्रेन आई तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बिकेम वेरी इजी. आपने यहाँ से सामान रखा और वो दूसरी जगह 1000 किलोमीटर दूर जो है वो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो, उस समय तो स्पीड कम हुआ करती थी, 2 या 3 दिन में वो पहुंच जाया करता था. सो ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया, आपका एक स्टीम इंजन, एक इंजन बनने से, एक रेलवे के इंट्रोडक्शन से आपकी ट्रैवल जो थी वो ट्रैवल चेंज हुई. न सिर्फ आपकी ह्यूमन ट्रैवल चेंज हुई बल्कि आपके सामान का ट्रैवल भी चेंज हुआ. सो नाउ इंडस्ट्रियल, जहां इंडस्ट्रीज लग रही थी उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, एंड रॉ मटेरियल कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार ऑफ एरियाज, बिकॉज सब जगह तो रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, बट इट कुड बी ट्रांसपोर्टेड. जब रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने लगा तो फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू हो गया, एंड पीपल, व्हेन फैक्ट्री लगी तो उसके लिए आदमी चाहिए थे, लोग चाहिए थे, लोग जो है गाँव से वहां पे लेबर आ गई. सो एग्रीकल्चर से जब फैक्ट्री प्रोडक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, उस एक सिंपल एक चेंज ने सोसाइटी में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया. सो नाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, मास स्केल, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही यही है कि मास स्केल प्रोडक्शन हो तभी प्रॉफिट होगा. जब वो मास स्केल प्रोडक्शन होने लगा, बड़े बड़े मात्रा में बड़े बड़े कंटेनर्स बनने लगे,
एक जूता नहीं, एक मोची तो एक या 2 जोड़ी 3 जोड़ी जूता बनाता था, अब वहां पे हजारों जोड़ी जूते बनने लगे। तो उस हजारों जोड़ी जूते के लिए आपको मार्केट भी चाहिए था, उसको बेचने के लिए आपको मार्केट भी चाहिए। अब मार्केट आपको चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? आप आसपास की जगह पे जाएंगे, यू विल एक्सप्लोर। जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहां पर भी एक लिमिटेड पॉपुलेशन थी, तो उस पॉपुलेशन की बियॉन्ड आप जाएंगे। ट्रेन ने आपको वो सुविधा भी दी कि यू कुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। बिजनेसमैन स्टार्टेड ट्रैवलिंग फार एंड वाइड इन फॉर ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स थे वो आगे पीछे जाने लगे, और ऐसे ही ट्रेडर्स करते करते वो कॉलोनाइजेशन भी होने लगा कि कॉलोनीज बन गई, और वो कॉलोनी में जाकर माल बेचने लगे और कच्चा माल वहां से लाने लगे। सो with factories came the growth of cities and growth of paid employment. अभी तक paid employment नहीं था, अब paid employment in terms of wages आपका होने लगा। Masses of people moved to the cities in search of work. Urban population जब हुई, लोग आने लगे, तो we find social problems like घर की रहने की प्रॉब्लम होने लगी, housing, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, इम्पर्सनैलिटी हो गई, क्राउडिंग हो गई, पॉवर्टी हो गई। आई कुडंट फाइंड अ पिक्चर, एक बहुत क्यूट सा एक पिक्चर है व्हिच इज वेरी सिंबॉलिक टू द स्कॉलर ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि कैसे शहरों में जब, एंड वी कैन टॉक अबाउट लंदन, कि लंदन जैसा जो मेट्रोपॉलिटन है, अगर आप वहां पे आप देखते तो सब तरफ फिल्थ, गंदगी, सब ये होने लगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल केम फ्रॉम रूरल एरियाज। उनके वहां पर कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं पर भी जाकर बसने लगे और रहने लग गए लोग। फैक्ट्रीज के बाहर शैल्टीज डाल के रहने लग गए और वहीं पर ही बैठकर काम करने लगे, अपना खाना वाना बनाने लगे। तो वो सारा एक स्कॉलर जो था, उसके पहले बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सिटीज थी, दे वर दी सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड दे वर द सेंटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वहां पर कल्चर, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, मतलब वो सब हुआ करता था। और अब विद द एडवेंट ऑफ लेबर क्लास ये सब चीजें पीछे चली गई, नेपथ्य में चली गई, और वो आगे आने लगे। सो दिस इम्पैक्टेड द सोसाइटी एट लार्ज। इट चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल ऑर्डर एंड ओपन डोर्स फॉर डेमोक्रेटिक चेंजेस। सो इस वजह से हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में हमें देखना पड़ता है। नाउ अगर आप देखें कि when this thing happened, तो August Comte 1838 में, क्योंकि इन्होंने ये लिखा, so he was thinking at that time that who is going to answer to these challenges, the breaking up of family system, the breaking up of, or the the rise of urban centers, the movement of people from rural areas to urban areas, the migration. What is going to happen to the rural areas or the traditional areas? Dismantling of traditional forms of thinking and patterns, questioning religion which was the mainstay of our lives, उनको भी क्वेश्चन किया गया। तो उस वक्त ये प्रश्न उठा कि सबके प्रश्नों के लिए हमें एक नए विज्ञान की आवश्यकता है, और वो विज्ञान समाजशास्त्र के रूप में विकसित हुआ। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियस प्लस लॉगोस, कहाँ से बना, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट this science or the social science developed to attempt to answer, provide answers to all the questions that were being raised by the combined forces of industrialization, scientific discoveries, or in the period of enlightenment, intellectual development that was happening at the same time. वो ऐसे हो रहा था कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक समाज के ऊपर सब तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही थी, सब तरफ से गोले फेंके जा रहे थे। कहीं से रीजन का गोला आ रहा था, तो कहीं से डेमोक्रेटिक वैल्यूज का गोला आ रहा था। तो हर चीज जिसमें आप विश्वास करते थे वो सब डगमगाती हुई नजर आ रही थी। प्रश्न बहुत थे, जवाब नहीं थे। तो इस वजह से एक समाजशास्त्र जैसे विषय की रचना की गई, जो कि इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेगा। अब ढूंढने का प्रयास करेगा तो किस प्रकार से प्रयास करेगा, है ना? वी कैन, आई थिंक दिस स्लाइड हैज बीन मिसप्लेस्ड, सो वी कैन टॉक अबाउट the early years. We will go to the method later, but we will go to the early years. Now 19th century फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। वहां पर साइमल्टेनियसली स्कॉलर्स जो हैं वो काम कर रहे थे, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिस्ट जो थे, ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, इन सब के नाम आपको पता है। आपको पता है कि ये लोग कितने, मतलब हम फाउंडिंग फादर्स में से इनको भी कहते हैं। एंड लेट अस टॉक अबाउट ऑगस्ट कॉम्ट। Now, August Comte का पीरियड आप देखिए 1798 to 1857, right? So now in August Comte French थे,
He was the founder of sociology. He first used the term sociology. He also coined it social physics. लेकिन social physics फिर बाद में नहीं करके, because he was very much influenced by science. और वो इसको physical physics की तरह से इसको finite science के रूप में देखना चाहते थे. He believed that sociologists should use the scientific method to uncover the laws that govern the operation of society. यानी कि समाज का जो संचालन हो रहा है या समाज में जिस प्रकार से कार्य होता है उसको समझने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना चाहिए. Because he lived during the French Revolution, he believed that his philosophy would bring stability. He had seen chaos in French society. इतना chaos हो गया था कि वहां पर बहुत कुछ सब कुछ परिवर्तन होता है, social, economic, political. तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी जो philosophy है ये समाज में stability लाएगी. So he was concerned with order and change. आपको पता है कि ऑगस्ट कॉम्ट ने दो प्रकार के उन्होंने emphasis दी थी कि social statics, that sociology is the study of social statics and social dynamics. Now statics, it describes those processes by which overall structure of the society remains stable, relatively stable or unchanged for a large period of time. यानी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं. और जो डायनामिक्स है वहां पर हम वो प्रोसेसेस देखते हैं which allow the society to change in a systematic manner. तो change and stability both are part of a social system. क्योंकि परिवर्तन इतना भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जड़ है और कुछ परिवर्तन नहीं होता है. तो दोनों चीजों का उन्होंने कहा कि हम चेंज का भी अध्ययन करेंगे और हम स्टेबिलिटी का भी अध्ययन करेंगे. His philosophy was positivism. He talked about positivism. Positivism said that we base our knowledge on science, scientific method. He coined law of three stages. He talked about theological, metaphysical, and scientific or positive stage. He talked about hierarchy of social sciences, where he moved from simple to complex, and contrary to what we think. उन्होंने साइंस के सब्जेक्ट्स को नीचे रखा और सोशल साइंसेस को या सोशियोलॉजी को सुप्रीम पे रखा. He said it is the most complex. It consists of abstract ideas, so it is more complex than mathematics also. So social sciences are most complex, hence they should be at the highest in the hierarchy. इस प्रकार से उन्होंने कहा. If you look at the law of three stages, now this also explains कि कैसे हम सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि जो इमर्जेंस हो रहा है, जो हमारा सोशियोलॉजिकल थॉट आया वो कैसे इमर्ज हो रहा है. He talked about three stages when he said first was theological, which was fictitious. उसकी टाइमलाइन जो वो देते हैं from dawn to humans, जब मानव जाति आई वहां से लेकर हम देख सकते हैं उसमें रूल कौन करता था, क्या डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस किसकी थी, प्रीस्ट की थी या फिर मिलिट्री की थी. जिसके पास शस्त्र थे यानी कि मिलिट्री फोर्स थी, it could be the king or it could be the priests who were the ruling class. And dominate कौन होता था, the families or the human beings would be dominated. The second stage he talks about is metaphysical, which is from middle ages to the period of renaissance. उसमें भी churchmen और lawyers वहाँ पर dominate करते हैं और state dominate होता है. Third is scientific, industrialization का time frame है इसका, क्योंकि 14-15 सेंचुरी से ही हम देखते हैं कि साइंटिफिक जो है इन्वेंशन डिस्कवरीज एकदम चेंज हो गया. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, लेकिन एकदम वी फाइंड अ लॉट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कमिंग इनटू इट. सो नाउ the dominating authority became the industrials, the industries, the administrators, the scientific moral guides. The entire human race was being dominated. So you can see कि एक how he has tried to explain कि किस प्रकार से society has moved. Period आप देखेंगे तो जो theological phase था वो बहुत बड़ा था, metaphysical phase में थोड़ा उससे कम था, and then now that the scientific phase has come, now it is there to continue. Another important thinker is Karl Marx. Again आप देखें इसका टाइम, इनका भी टाइम फ्रेम जो है 1818 to 1883. And at the same time, the sociology was being born. He was a German philosopher, born of middle-class parents, had doctorate from Berlin University. लेकिन वहाँ से वो निकल गए, पेरिस गए, वहाँ से भी उनको भगा दिया गया उनके आइडियाज के लिए. फिर वो ब्रसेल्स गए और फिर बाद में लंदन गए. He felt, contrary to what
August Comte said, he said that overall structure is influenced by how the economy is organized. उन्होंने कहा कि सबसे important factor जो है ना वो है economy. How economy is being organized वो जरूरी है. तो हमें ये देखना चाहिए कि economic organization कैसा है, and that is we know that Karl Marx laid a lot of emphasis on economic. Then he said that society is divided into two classes, where one is the owners of means of production, which he called the bourgeoisie, and those who own only their labor, whom he called the proletariat. यानी कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हम देखते हैं कि हमेशा दो ही क्लासेस बन जाती हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो दो ही क्लासेस बन जाती है, प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआए, और फिर उनमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो इम्बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन देम लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि नेचुरल है जिसके जो ओनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसका एम क्या था, बिकॉज यहाँ पे कैपिटलिज्म भी आ गया, तो उसका एम क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए वो कॉस्ट कटिंग करेगा, लेबर वेजेस कटिंग करेगा, लेबर को वो सुविधाएं नहीं देगा, तो इसीलिए उनमें इम्बैलेंस ऑफ पावर हुआ और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. मार्क्स वाज ट्रबल्ड बाय द इल्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कि जो लॉन्ग आवर्स हैं, लो पे है, हार्श वर्किंग कंडीशंस थे, उनसे बहुत ज्यादा वो ट्रबल थे, कि उन्होंने कहा ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की परेशानियां हैं. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लेबर को बुलाओगे, लेबर क्योंकि इंडस्ट्रीज को अपनी मशीनों को में डालने के लिए वो, क्योंकि मशीन तो थकती नहीं है, ह्यूमन लेबर तो थक जाता है, तो पहले रात को काम बंद हो जाता था, लेकिन अब मशीनें रात भर चल सकती हैं, 24 घंटे चल सकती हैं, तो उनके लिए आपको शिफ्ट्स भी चाहिए, और शिफ्ट्स आप जब लगाते हो तो लॉन्ग आवर्स, रात के समय नाइट शिफ्ट भी आप लगाते हो, तो उसकी भी समस्याएं वहां पर हुई. सो ही फेल्ट दैट खाली ऑब्जर्व करने से या खाली कहने से कुछ नहीं होगा. इफ यू वांट टू transform, if you want transformation, then you have to work for it, and that is why he said the workers should overthrow those in power, and that is why his theory, when he talks about class struggle, he says workers of the world, ye unite, you have nothing to lose but your chains. So he talks about that कि कैसे हम workers जो हैं, जो भी जिनको भी exploited class जो है, वो exploited class को एक साथ आना होगा, क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप करनी होगी, तभी वो जाकर आगे जा सकते हैं. Then he also gave the concept of historical materialism and dialectical materialism, which we all know that how dialectics. He said that there's always a dialectics in this society. Society is not static. It is always in flux, and when it is always in flux, so every time there is a thesis, antithesis, and then there is a synthesis. As dialectical materialism talks about that. He talked about historical materialism, where he says the history of all hitherto existing societies is the history of class struggle. बोले कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर कि वर्ग संघर्ष नहीं होता. उनका कहना था कि हमेशा समाज में एक्सप्लॉयटेशन होगा. अगर आप एशियाटिक सोसाइटीज देखें या आप एंशिएंट सोसाइटी देखें, तो वहाँ पे दास्ता और मालिक स्लेवरी सिस्टम मिलेगा, आपको फ्यूडल सिस्टम मिलेगा. तो एवरी स्टेज of history will have manifest different forms of exploitation and different forms of classes, where there will still be two classes of owners and the non-owners, or the haves and the have-nots. और इस प्रकार से वो अपने उसको जो conflict ideology है उनकी, वो conflict ideology को वो वहाँ पर स्थापित करते हैं. तीसरे जो मेन हमारे sociologist rahe wo Spencer. Again the time frame is the same, 1820 to 1903, and he was highly influenced by Darwin. उन्होंने biological analogy दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से human, he talked about survival of the fittest. अभी आप देखेंगे कि उन्होंने कहा just as in living organism, biological system works together to maintain the health. जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए काम करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें. किसी भी अंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती है. उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सोसाइटी इज आल्सो मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन द सिस्टम. जैसे फैमिली है, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, ये सारे एक साथ में काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, लेकिन दे वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन एम. सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोसाइटी. It saw change and unrest as natural occurrences in a society, evolution towards stability. यानी कि उनका कहना था कि समाज जो है वो निरंतर प्रोग्रेस करता है और आपको चेंज आपको हमेशा दिखाई देगा सोसाइटी में. He talked about survival of fittest,
Now fittest societies will survive over time. जैसे जब चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि fittest will survive, यानी जंगल में जो फिट होता है वो सर्वाइव करता है और जो अनफिट होता है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता चला जाता है. So he used the term social Darwinism, the perspective that holds that societies evolve towards stability and perfection. ये स्पेंसर ने दिया था. सो इवन कई सारे जो शुरुआती सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस डार्विनिज्म से, सोशल डार्विनिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित वहां पर हुए थे. देन इमाइल दुर्खीम 1858 to 1917. He was again French. He taught philosophy before offering a course in sociology in France. He was the first to apply scientific method to the study of society. Empirical method इन्होंने use किया. If you look at his work on suicide में इन्होंने empirical work किया. वहाँ पे उन्होंने सुसाइड के केसेस को देखा और empirical study को करके उन्होंने वहाँ पे अपने theory of suicide जो है उन्होंने वहाँ पर दी. He said, study social facts in order to establish sociology as a scientific discipline. Focused on social order, like Spencer, he saw society as interdependent parts, not independent but interdependent parts that maintain the system over time by performing their roles as functions. So every society, every organ has a different function to perform, and a function is a positive consequence that an element of society has for the maintenance of the system. यानी कि अगर family है, religion है या इकोनॉमी है तो इन सब का कोई ना कोई फंक्शन है सोसाइटी में, और वो जब तक वो फंक्शन जो है सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है तो सोसाइटी अच्छे से चलती है. लेकिन अगर वो डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में मर्टन ने फंक्शन डिसफंक्शन की बात करी, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात करी, तो वहां पर फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं. He said that shared beliefs and values who are the glue that hold the society together. कि समाज को अगर बांध के रखना है तो कोई कॉमनैलिटी होनी चाहिए, और वो कॉमनैलिटी में वो कहते हैं शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम. उनका काम रिलीजन में भी बहुत अच्छा था. थ्योरी ऑफ रिलीजन जो थी दुर्खीम का, उन्होंने काम लिया था. देन ही आल्सो gave the concept of mechanical solidarity and organic solidarity. Mechanical solidarity में वो बात करते हैं collectivism over individualism. कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी सिंपल सोसाइटीज थी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न सोसाइटीज में देखने को मिलता है, वेयर वी फाइंड इंटरडिपेंडेंस. ईच यूनिट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर एग्जिस्टेंस. तो इंटरडिपेंडेंस हमको दिखाई देती है ऑर्गेनिक में. तो देयर आर टू मेन मेजर फंक्शंस ऑफ सोसाइटी. वन इज इंटीग्रेशन एंड वन इज रेगुलेशन. उन्होंने कहा समाज के दो ही काम है, एक तो आपको इंटीग्रेट कैसे करना है और एक आपको सोसाइटी के मेंबर्स को रेगुलेट कैसे करना है. तो आप यही दो कार्य आपको करने हैं. देन देयर इज अनदर थ्योरिस्ट मैक्स वेबर. ये तो अर्ली फाउंडर्स में ही आते हैं, 1864 to 1920. Now he was a German. तो आप देख रहे हैं फ्रेंच जर्मन. So mostly we getting scholars from France and Germany. And this was doctorate from Berlin University. He founded German Sociological Society in 1910. And ideas and values may be major causes of social change akin to economic factors. अब इधर मार्क्स ने कहा इकोनॉमिक फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट. मैक्स वेबर बिल्कुल उनके कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं नो, आइडियाज एंड वैल्यूज कैन बी द मेजर causes of social change. He was interested in groups within societies as a whole, and he analyzed the effect of society in general on an individual. मैक्स वेबर ने कहा कहना था कि ह्यूमन बीइंग्स अटैच मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू देयर एक्ट, एंड सोशियोलॉजिस्ट मस्ट टेक इनटू these into account while constructing the meaning. यानी कि अगर मैं आपको यहाँ से वेव करती हूँ तो इसका कोई अर्थ होना चाहिए. मेरा भी अर्थ है और आपके लिए भी उसका कोई अर्थ होना चाहिए. सो हाउ डू यू डिराइव मीनिंग. सोशल एक्शन हमने उनका पढ़ा. वर्स्थिन एक उन्होंने टूल हमें दिया which talks about empathetic understanding of meaning others attach to their actions. That empathetically देखिए आप. Then he gave the concept of ideal type, description of essential characteristics of some aspect of society. Bureaucracy का उन्होंने example दिया. Authority की उन्होंने बात करी, traditional, charismatic and rational authority. So मैक्स वेबर ने एक और स्कूल ऑफ थॉट दिया. एक स्कूल ऑफ थॉट आया हमारा शुरू में, दुर्खीम ने दिया, फंक्शनल स्कूल की बात करी. एक स्कूल ऑफ थॉट आया मार्क्स से जिसने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, और मैक्स वेबर का एक और स्कूल ऑफ थॉट आया इंटरैक्शनिज्म, जिसमें उन्होंने
इंटरैक्शनिस्ट समाजशास्त्र की उन्होंने वहां पर बात करी. So we find different theoretical approaches emerging out of this context. Now, as I said, functionalism आया, Comte, Durkheim, later on Parsons, Merton, and up so on and so forth. एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे क्योंकि फंक्शनलिज्म जो है बायोलॉजिकल एनालॉजी की बात करी, ट्राइबल सोसाइटीज का भी अध्ययन किया जा रहा था, स्मॉल सोसाइटीज का अध्ययन किया जा रहा था. तो वी फाइंड द प्रेवलेंस ऑफ फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिस्ट थॉट इन द राइटिंग्स ऑफ रैडिकल ब्राउन, मेलिनोव्स्की, and the premise was that different parts of society develop in close relation with one another. Each part functions towards continuation of the society as a whole. So that consensus is maintained in the society. Now the whole premise of functionalism is प्रकारवाद का सिद्धांत जो कहता है, वो कहता है कि समाज में मतैक्य होना चाहिए, consensus होना चाहिए. Norms and values provide foundation for rules and laws that it creates, and these norms will regulate the relationship between social institutions. So functionalism जो कहता है कि भाई जितने भी parts हैं, they aid to the growth of the society, वो they remain in existence till they are functional for the society. फिर बाद में मर्टन ने functional prerequisites की बात करी और आगे और बातचीत हुई. So they talk about this. Then came the conflict perspective. आप देखते हैं कि मार्क्स, डेरेंडॉफ, कॉलिंस की हम बात करते हैं. Now, as we said in Marx, that this perspective, Marx was a proponent of this perspective, where he talked about that the focus of sociologists should be on those forces in the society that promote competition and change. कि change तो होगा ही. So कौन सी forces उस change को ला रही है, आपको उन forces को study करना है. So focus on overall power structure in society. Then there is a conflict between groups of interest, यानी कि जिसका जो हितधारक हैं उनके बीच में आपको संघर्ष दिखाई देगा. Conflict is the driving force of social change. According to him, conflict is the driving force of social change. वहां पर हम देख रहे हैं consensus is the driving force of social change. It views society in struggle for scarce resources, क्योंकि resources तो limited है. तो उन limited resources के ऊपर ownership के लिए लोग झगड़ा करते हैं, उनके लिए में संघर्ष होता है. It is not the consciousness of men that determines their existence, but on the contrary, it is their social existence that determines their consciousness. Historical materialism कहता है कि it is not the consciousness of men. There is perpetual class conflict in society due to unequal distribution of resources. और इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है. Dialectics होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, एलिनेशन होता है, आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, एलिनेशन होता है. तो मार्क्स इन इटसेल्फ जो है उनका जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, दैट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग. एंड उन्होंने तो बकायदा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने स्टेजेस भी बताई हैं कि ईच society will pass through these stages. Though one of the criticism which is levied against Marx is कि जो stages की वो बात करते हैं वो stages नहीं आई या आई तो वो खत्म हो गई, वो sustainable नहीं रही, क्योंकि समाज, society has a power. Society is not something which will go for 2 + 2 4 नहीं होगा, 2 + 2 22 भी हो सकता है. तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे या लोग कैसे, सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी टू इन चीजों को, वो तक होती है. तो ये चीज हमको मार्क्स पे दिखाई देती है. देन इंटरैक्शनिज्म एज अ पर्सपेक्टिव केम, व्हिच एज आई सेड फॉर Weber, that Weber was the beginner, Blumer, Mead, Goffman, and so on and so forth. Now, in interactionism, the focus is on how individuals interact with one another in society and create the world in which we live. आप और हम इंटरैक्ट कैसे करते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं इंटरैक्शन के. इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंटरैक्शन गवर्न किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है. So individuals assign meaning to their action and action of others. The focus on language, symbols that help us give meaning to the experiences in our life. तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट हो गई, चिन्ह इंपॉर्टेंट हो गए. जैसे आप अगर रोड पे जाते हैं और वहां पे रेड लाइट अगर हो जाती है ट्रैफिक सिग्नल पे, ऑल यू नो कि दिस रेड लाइट मींस स्टॉप. ऑरेंज है तो यू कैन लुक एंड ग्रीन है तो यू कैन गो. सो no, you don't have to be taught every day कि इसका मीनिंग क्या है. So जो मीनिंग असाइन हुआ वो कल्चरली और वो सोशली जो है गवर्न भी होता है. एंड इंटरैक्शनिज्म आल्सो सेज दैट सोसाइटी में देयर इज ऑलवेज अ सोशल ड्रामा.
that is in constant negotiation. Goffman की बात करते हैं, dramaturgy की बात करते हैं. So context and setting affects our understanding of a social event. एक व्यक्ति की जो context है, एक व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा हुआ और एक व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसके लिए दोनों के लिए कंटेक्स्ट डिफरेंट हो सकते हैं. जब कंटेक्स्ट डिफरेंट होगा तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी सोशल इवेंट्स की वो भी फर्क होगी. इंटरैक्शनिज्म कहता है इसलिए हमको इनको भी देखना चाहिए. ये तो हुई वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थॉट की बात. अब हम क्योंकि इंडिया में हैं, मुझे कहा गया था कि थोड़ा सा इंडियन के ऊपर भी बात करिएगा. सो लेट अस टॉक अबाउट हाउ ब्रीफली टच अपॉन सोशियोलॉजी इन इंडिया. नाउ यू नो 1838 में जब समाजशास्त्र कॉइन हुआ तो आप समझ लीजिए हमारे यहाँ क्या सिचुएशन थी. हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, यहाँ पर अंग्रेजों का राज था और हमारे यहाँ पर जो है सिस्टम्स जो हैं, एजुकेशनल सिस्टम भी अंग्रेजों की देन था. एंड सो most of the people who began teaching sociology or who began working on social issues were those people who were trained in the West. They went to the West for education क्योंकि इस तरह की शिक्षा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थी. वो विदेश गए, पाश्चात्य देशों में गए, बर्लिन यूनिवर्सिटी गए, कोई कैम्ब्रिज गया, कोई ऑक्सफोर्ड गया, इस तरह की यूनिवर्सिटी में गए. And hence they brought back those categories or basic concepts and categories of sociology which had developed in the West to India. जब वो गए वहां पे जब आए तो उन्होंने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं अवधारणाओं को भारतीय संदर्भ में भी देखने का प्रयास किया. उन्होंने मान लिया कि जो कॉन्टेक्स्ट वेस्ट में था वही कॉन्टेक्स्ट इंडिया में भी लगेगा. So they borrowed these concepts and categories and applied them to the Indian context. Thus, unlike their predecessors in the West, जहां वेस्ट में कॉन्सेप्ट बना रहे थे, जहां वेस्ट में जो सोशियोलॉजिस्ट थे, they were coming up with concepts. हमें यहाँ पर इंडिया में हमें कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने में भी स्ट्रगल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक डिसिप्लिन के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका था वेस्ट में. सो वी डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल विद दैट कि भाई हमको यहाँ पर कहना पड़े कि भाई समाजशास्त्र की आवश्यकता है और इसकी ये जरूरत है. उसको मान लिया गया. लेकिन ये जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग पर जो हमारा डिपेंडेंस था, उसका ये हुआ कि हमने उन जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस की हमने शुरू में बात करी, उन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, हम तो अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टेज में ही है ना. अभी भी हमारे यहाँ ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ. अभी भी हमारे 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इवन नाउ, इवन इन द 21st सेंचुरी. सो दे फॉरगॉट कि जो सोशियोलॉजी वेस्ट में डेवलप हुई वो एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स थी टू द कंडीशंस दैट वर मिटिगेटिंग देयर. लेकिन उन कंडीशंस के क्या इंडियन सोसाइटी में भी वही कंडीशन थे जिस टाइम पे इन्होंने काम शुरू किया 1910 में, 1910 में, स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में जब काम शुरू हुआ समाजशास्त्र के ऊपर, तब हमारे यहाँ औद्योगिकरण की तो समस्या ही नहीं थी. हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा था. हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का अर्बन सेंटर्स नहीं थे, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था. लेकिन फिर भी हमने उन कॉन्सेप्ट्स को ही अपने यहाँ पे ला के रखा. सो sociology and anthropology began as a colonial attempt to understand Indian society and culture. So beginning में ज़्यादातर scholars जो थे वो आप देखेंगे या तो Indians trained in the West, or it was the Western scholars who came to study the Indian society, and they found the Indian society very enigmatic क्योंकि यहाँ caste system था, यहाँ सोसाइटी में हायरार्किकल बहुत ज्यादा हायरार्की थी. तो वो दे केम हियर एंड दे स्टार्टेड स्टडीइंग द इंडियन सोसाइटी. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश कॉलोनी हम बन गए थे, तो उन्होंने सेंसस इंट्रोड्यूस किया. 1901 में पहला सेंसस हुआ. जब उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू किया, उन्होंने काउंटिंग शुरू कराई. सो वी फाइंड दैट it was more of a response to the administrative need of the Britishers. Sociology emerged as more because of the administrative need of the Britishers, who wanted to understand India and Indian culture in order to govern it better. So there were three basic approaches. The first was the Orientalist approach, the second was the missionary approach, and third was the administrative approach, which was seen. Then as a British administrative officers, along with the missionaries, they made an effort to collect data, record the information, क्योंकि इसके पहले हमारे कोई recording नहीं थी. आपको पता है कि prior to the the Britishers coming here, the society was Indian society में, India में हमारे पास principalities थी, छोटे छोटे राज्य थे, अपने अपने वो govern करते थे. And hence we find that this मतलब ऐसा कोई cohesive India जैसी
हमारे पास वो नहीं थी. मुगल्स के अंदर में एक large part of the country came into in under one kingdom और डायनेस्टी. उसके पहले अशोक के टाइम पे आई थी, मौर्यन टाइम. लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने जिस प्रकार से कॉलोनीज बनाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उतना हम कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे थे. और इसीलिए रीजनल लेवल्स पे आप देखते हैं कि स्कॉलरशिप डेवलप्ड. बट जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जब पूरे इंडिया को उसको एक साथ में बांधा, तो उन्होंने अपने समझ के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसको बनाने लगे. और उनके जो ऑफिसर्स थे या जो मिशनरीज थे जो कि यहाँ पर आए टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, they started going to the far off areas and started recording, maintaining a chronicle, maintaining a diary, and they started recording the life and culture of Indian social groups, which became a very good source of understanding of the social, the societal values and cultures. So census, next was census 1901 में शुरू हुई. So census was the next, which became a very invaluable source of information, not only for demographic studies but also for social and cultural analysis. The first phase, if you can see growth and development of sociology, it became from 1773 to 1900, when, as described earlier, the foundation of its growth were laid by the missionaries and the Britishers. The second phase was 1901 to 1950, when the two disciplines became professionalized, that is the sociology and anthropology. And in beginning, sociology and anthropology, sociology was being taught along with economics. In most of the universities, it was taught along with economics. There was no separate department of sociology. And the third phase is, which is after India gained independence, that is post-independence phase. Which post-independence came, plan development हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुई, उसने अपने अलग चैलेंजेस थ्रो किए. और उन चैलेंजेस के जवाब में हमारे जो सोशियोलॉजिकल थॉट है वो भी उसमें वहाँ पर डेवलप हुआ. The first department of sociology came up in Bombay University, now which is called Mumbai University, 1914 under Sir Patrick Geats. It was taught along with economics. फिर लखनऊ स्कूल में 1920, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1921, राधा कमल मुखर्जी taught along with economics. फिर मैसूर यूनिवर्सिटी में 1928, again it was taught with social philosophy. पूना यूनिवर्सिटी 1930s में इरावती कर्वे वहाँ पर थी. In Calcutta, it was taught along with anthropology, and so we see that the emergence or the development of sociology in India is a very recent phenomenon. It's a 20th century phenomena, and in 20th century phenomena also, अगर आप वो देखें ICSSR के वॉल्यूम्स देखें आप कि जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं किस प्रकार का काम हुआ है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पहले focus was on understanding the caste system, रिजले को देखें या गुरिये के काम को देखें, तो it was mostly on understanding the caste and the hierarchy in the society. And later on, rural India or village studies became to be very important. How change was coming in the rural society, it became important. जब post independence आए तो हमारा 5-year plans आए, तो 5-year plans community development program आया, integrated rural development program आया. तो ये प्रोग्राम ने कैसे लोगों के जीवन को बदला और किस प्रकार से, तो इस प्रकार का अध्ययन वहाँ पर होता रहा. आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो समाजशास्त्री अध्ययन है उसमें caste still remains a very important element to be studied. So this is how you see that a young discipline which has emerged because of the emergence of the social factors which caused it to change. Now we can look at the methods that we were talking about कि क्या methods हमने sociology में adopt किए है ना. Sociological methods की जो बात करें, हम देखते हैं कि historical method which examines material from the past. We use content analysis. Count the number of times a particular word, phrase, idea, event or symbol appears in a given text. Survey, most important. Collect data on attitudes and opinions from large number of people through questionnaires or interviews. Observation. Watch the behavior of individuals in actual social setting. It could be participative, it could be non-participative. Case study. Statistical analysis, intensive analysis of a person, group, event or problem, and use of mathematical data to analyze and determine the strength of relationship between two or more variables. So the sociological methods also developed out of a context. क्योंकि science वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण थी,
और साइंटिफिक मेथड की बात हो रही थी. सो हेंस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया गया कि ऑब्जर्व इट एक्चुअल सेटिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ लैब सेटिंग नहीं हो सकती थी, तो सोसाइटी बिकेम आवर लैब. So going to the field and observing the phenomena as it occurs was considered to be very important. And hence you will see most of the studies have field studies incorporated into it. And statistical analysis, mathematical analysis, drawing inferences became important. और numbers को आपको खाली लिख देने से नहीं है. So then of course new the qualitative methods and the quantitative methods. तो quantitative methods पे ज़्यादा emphasis था पहले. Later on, इसको question किया गया, qualitative methods की बात आई, जब radical and humanistic perspective, even in the global sociology we find in 1966, there was a division, and classical sociology अलग हुई और radical sociology, a humanist perspective, scientific perspective और humanistic perspective की बात हुई. हम देखते हैं कि नए और जो है methods develop होकर आते हैं. So quantitative method and qualitative methods are two types of methods that are being used. और अब तो mixed methods की बात होने लगी है कि भाई दोनों होने चाहिए. There no study can be purely qualitative or purely quantitative. हो सकती है, लेकिन अगर हम दोनों methods का blend करेंगे तो बेहतर हमको प्राप्त हो सकती है, बेहतर insight हमारी develop हो सकती है. So I think my time is also over. I'd like to stop here. And if there are any questions, you are most welcome. If there are any questions, most welcome. Thank you so much, ma'am. Participants, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैम से. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर या मैक्स वेबर, उन्होंने जो भी थ्योरीज बनाई हैं, क्या वो आज के 8% टाइम में वर्क करता है कि फिर नहीं करता है? आप देखिए, आप खुद देखिए, क्या समाज में आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं देता? ये जरूर है कि जिस तरह से मार्क्स ने उस समय सिद्धांत दिया था, वो पार्टली हमारे पर लागू होता है. जो उनकी बेसिक प्रमाइस थी कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, दैट इज देयर. बट उनका जो जवाब था, रिस्पॉन्स था कि कैसे इसको दूर किया जाए, जो उन्होंने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बताया, वो हम देखते हैं कि दैट हैज बीन क्वेश्चन. सो हिज थ्योरी इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, बिकॉज तो डिटर्मिनिज्म जो है उसके ऊपर बहुत क्रिटिक हुआ, क्योंकि आज हम जानते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी डिटर्मिनिस्टिक हम कहें कि एक ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो सही नहीं है, क्योंकि सोशल भी है, कल्चरल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो एनी थ्योरी व्हिच इज डिटर्मिनिस्टिक has a problem, cannot be used today, because determinism में अब ये it is also open to debate कि भाई some people may say कि नहीं determinism हो सकता है, लेकिन I feel that in a society which is evolving, very rapidly evolving, अब अगर हम मार्क्स के बाद अगर हम अभी 21वीं शताब्दी को भी देखें, you can see in 21st century हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी लाइफ कोविड ने बदल दी. इन ये जो 2 साल कोविड के थे, इन्होंने हमारे जो 100 साल में परिवर्तन नहीं हुआ था, या 50 सालों में सरकार परिवर्तन नहीं कर पा रही थी, वो परिवर्तन हमारे सोशल बिहेवियर में परिवर्तन आ गया. हम कहते थे कि सोशल बिहेवियर चेंज नहीं होता है, हाँ बहुत टाइम लगता है, लेकिन देखिए कोविड जैसी बीमारी ने हमारे सोशल बिहेवियर में भी चेंज ला दिया. सो थिंग्स आर इवॉल्विंग. सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं है ना, फ्लक्स में रहती है, लेकिन हम इन पैराडाइम्स को यूज करके अपने फ्रेश पैराडाइम्स बना सकते हैं. देखिए थॉट का मतलब क्या है? इट इज दैट दैट रिपोजिटरी, या एक वो खजाना है आपके पास जिसके ऊपर आप ऐड करते हो. आपकी समझ आ गई आपको, अब आप इस समझ के ऊपर और ऐड करते हो, तो आप देखते हैं कि खाली यहीं पे तो नहीं खत्म हो गया ना सोशियोलॉजिकल थॉट. अब आपके पास सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, आपके फेनोमेनोलॉजी है, एथनोमेथोडोलॉजी है, बहुत सारे आपके पास नई, हर बार जो चैलेंज आएगा उस चैलेंज के लिए आपके पास नई थ्योरीज होंगी. अभी तो पूरा डिबेट इस पे हो रही है कि पोस्ट कोविड सोशियोलॉजी क्या होगी, बिकॉज इट हैज क्वेश्चनड. जैसे हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, इट इज क्वेश्चनिंग कि समाज में हम डिस्टेंस की तो बात ही नहीं करते, हम कोहेजन की बात करते हैं, हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं.
अब यहाँ तो ये प्रश्न हो गया कि आप डिस्टेंस बना के रखिए। तो पोस्ट कोविड सोशियोलॉजी की भी बात हो रही है कि किस प्रकार की पोस्ट कोविड सोशियोलॉजी होगी। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आईएसए की वेबसाइट पे जाएं, ग्लोबल डायलॉग नाम की उनकी पत्रिका निकलती है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, और वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में है और हिंदी में है। उसका अनुवाद 17 भाषाओं में होता है। उसमें पिछला जो वॉल्यूम था 11.2 या 11.1 वॉल्यूम जो था, इट इज ऑन पोस्ट कोविड सोशियोलॉजी। रीड दैट, रीड दोस छोटे छोटे एक डेढ़ पेज के उसमें आर्टिकल्स हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है अपने प्रश्नों के सवाल जवाब मिलेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन ग्लोबल आप जाइए इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, या आप खाली ग्लोबल डायलॉग भी टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा। somebody is asked which site, so it is इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसकी एक पत्रिका निकलती है ग्लोबल डायलॉग, है ना। तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी भी है, नहीं तो अंग्रेजी में तो है ही। 17 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है वो, और उसमें पूरे विश्व के सभी पार्ट से आपको दिखेगा। आपको वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि वहाँ पर समाजशास्त्र में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड कि अरब में क्या हो रहा है या यूएसए में क्या हो रहा है, और कई बार तो वो एक एक पर्टिकुलर रीजन पे फोकस करते हैं। Good afternoon, ma'am. Ma'am, I have a question, and the question is: sociology without history is rootless, and history without sociology is rootless. So, how can we answer this question? Because it has asked so many times. Yeah, that is true. Because when you read, if you want to understand sociology, context बहुत important है। As I said, context बहुत important है। और context आप कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि जो कुछ अगर आज हम डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट की बात कर रहे हैं, if you don't read the context, कि उस समय जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस थी, वो फोर्सेस किस प्रकार से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही थी, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है कि बस हाँ जी ऑगस्ट कॉम्ट को एक ब्राइट आइडिया आया और उन्होंने सोशियोलॉजी कॉइन करी। इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द कंटेक्स्ट, the historical context that was taking place. Now feudalism is a historical context, monarchical form of government is a historical context, है ना। industrialization could be a current context at that time क्योंकि उस समय हो रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हो चुकी थी, and hence there is a very close relationship between history and sociology. And without understanding, I mean, that is why we have one method which is called historical method. Without historical method, use of historical method, we are unable to unravel or unearth the intricacies of the social behavior. क्योंकि जो दिखाई देता है, one of the lacuna of the scientific method was this, that it says it is believes in sensory organs. तो जो दिखाई देता है वो अक्सर कई बार सच नहीं होता। जो आपको दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि वो वाकई में वैसा ना हो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होता, उसको बाहर शक्ल से तो नहीं देख सकते ना आप। सो यू हैव टू प्रोब फर्दर टू फाइंड द ट्रूथ। सो एट टाइम्स जो सोशल साइंसेस, एंड दैट इज व्हाई ऑगस्ट कॉम्ट हैड सेड दैट द सोशल साइंसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड दे शुड, दैट इज व्हाई दे शुड बी केप्ट हायर। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, वी टेक सोशियोलॉजी एज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, है ना। हमारे यहाँ, आई डोंट नो आपके यहाँ कैसा है, लेकिन जनरल ट्रेंड ये है कि हम समाजशास्त्र को एक बहुत आसान विषय, क्योंकि वे उन चीजों के बारे में बात करता है। एक तो इसकी क्या टर्मिनोलॉजिकल इनएडिक्वेसी है, हमारे पास शब्द नहीं है, हम वही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो जो शब्द नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में हम यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द सेम टर्म, देन ऑब्वियसली देयर वुड बी अ मिसनोमर, उसमें लोगों को दिक्कत होगी। जो जैसे हम फैमिली की बात करते हैं या मैरिज की बात करते हैं तो हम उसी तरह से बात करते हैं। मैरिज फॉर अ लेमैन, मैरिज इज समथिंग एल्स, एंड फॉर अ सोशियोलॉजिस्ट मैरिज मीन समथिंग एल्स। मैरिज इज नॉट जस्ट कि शादी में गए, खाना खाया। आम आदमी के लिए वो चीज हो सकती है विवाह के लिए, पर हमारे लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। सो सोशियोलॉजी
relatively new discipline था और उसके पास क्योंकि पहले ही टर्मिनोलॉजी उपलब्ध थी तो उसने अपनी टर्मिनोलॉजी बोरो कर ली वहां से और यूज कर लिया. So it did not. So this is one shortcoming of sociology, that it has not been able to develop its own terminology. So we should work on the terminology. There should be specific conceptualization, operationalization of concept should be there. जैसे हम यूथ कहते हैं, अब यूथ की कैटेगरी क्या है, अब आपको डिफाइन करना है. आप लोग कभी डेजर्टेशन लिखेंगे तो आप कहेंगे कि युवाओं में परिवर्तन. अब भाई युवा कौन से, कौन सा एज ग्रुप को आप युवा मान रहे हैं, या बच्चों में परिवर्तन. तो डिफाइनिंग द एज कोहोर्ट्स, डिफाइनिंग, एंड बिकॉज आपने जैसे ही युवाओं में 19 से 35 वर्ष ले लिया तो 35 वर्ष का व्यक्ति और 19 वर्ष के व्यक्ति में ऑलमोस्ट डबल द एज हो गया. तो ये मतलब डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पर. You're muted, Simran ji. Yeah. Thank you so much, ma'am. Participants, आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं? Okay. Okay. I think मैम सबको क्लियर है मैम. आपने बहुत प्रभावशाली ढंग से हमें. हाँ, यस मुस्कान. Ma'am, my question is sociological approach better than psychological approach? There is nothing as better or worse. Sociological approach is used to define or to understand social phenomena, and whereas psychological approach is used for different things. So जब perspective आपका different है, आपका context different है, आप क्या चीज देखना चाह रहे हो वो different है, तो you cannot say that this is better or that is better. हाँ, अगर आप किसी के perception को पढ़ना चाहते हो, किसी की opinion formation को देखना चाहते हो, तो you can use the psychological approach. But if you want to understand the social behavior, तो उसमें elements of psychological approach can be taken. लेकिन बेटर है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, क्या देखना चाहते हो आप, पर्सपेक्टिव क्या आप स्टडी करना चाहते हो, किस संदर्भ में आप बात करना चाहते हो. उस संदर्भ बहुत, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए समाजशास्त्र में कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू ऑलमोस्ट मस्ट डिफाइन योर कॉन्टेक्स्ट एंड देन ओनली चूज द अप्रोच. थैंक यू मैम. मैम आपने बहुत प्रभावशाली ढंग से हमें समाजशास्त्र के इतिहास की व्याख्या की है. मैम आपने अपने व्याख्यान में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया है. जैसे मैम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है जो कि समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इसके अलावा आपने ये भी बताया कि किसी एक पर्टिकुलर सोशलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है समाजशास्त्र के इतिहास में, बल्कि बहुत सारे फाउंडिंग फादर्स हैं, उनके अपने पर्सपेक्टिव हैं. जैसे अगर हम इमाम दुर्खैम की बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें, इनका एक अपना पर्सपेक्टिव है समाज को समझने का. मैम आपने ये भी हमें बताया. इसके साथ साथ मैम आपने सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया की भी बात की कि भारत में किस तरीके से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, और साथ साथ मैम आपने सोशियोलॉजिकल मेथड्स की भी बात की कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर द थॉट प्रोवोकिंग टॉक. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच, माय प्लेजर एंटायरली. थैंक यू मैम. मैं साथ साथ अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें समय समय पे प्रोत्साहित करती हैं कि हम ऐसे व्याख्यान आयोजित करें. साथ साथ हम अपने पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि इतने पेशेंसली उन्होंने सुना और इतने इफेक्टिव तरीके से उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. वंस अगेन थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.